So welcome to your PDA platform, Ashish. Let's start your snap for environmental engineering for Yes, the sir. organization of GPST and Polytechnic professor, branch civil Yes. engineering. So my first question is, can you tell me the number of the IS code that we use for drinking water specifications? Yes, sir. IS 10500, sir. We also follow, sir, WHO standards, uh, and Okay. we also follow CPHEO manuals. CPHO. CPHEO manuals. Okay, W. Okay. Yes. Can you tell me, according to this IS code, what is the permissible limit of hardness in drinking water? Yeah, sir. Permissible limit is 200 mg per liter, and cause for rejection limit is 600 mg per liter, sir. But for What do water you mean by supply, cause for it's rejection? well, like if alternate source is not available, then we go for that limit, sir. uh, cause for rejection limit means it cannot exceed that limit. That is the maximum limit, that is like 600 mg per liter, and in case of water supply it's at 75 to 115 mg per liter. No, what are you telling us then? What is 200? 200 is permissible limit, sir. What is 75? So for domestic water supply usually it's like 75 to 115 mg per liter, sir. It's kept like that. So 200 is for industrial water supply then? If No, sir. domestic के लिए 75 बोल रहे हो आप, तो 200 क्या जी, चीज? sir, sorry, sir, I don't know exactly, but I read somewhere, sir. Okay, मैं बताऊंगा इसका क्या है, 75 क्या जी, चीज है. But जी, at the end of the session हम लोग कर लेते हैं. Okay, the next okay, sir. question that I was asking you, cause for rejection. Can you tell Yes, sir. me the permissible limit for fluoride content in water? Yes, 250 mg per liter, sir. Fluoride content, fluoride. Okay, fluoride, yeah. So fluoride is permissible limit is 1.5 mg per liter, sir. 1 to 1.5 is fine. Okay, 1.5 mg. Yes, sir. Okay. Uh, should there be some concentration of fluoride in water that is necessary? Yes, Concentration of fluoride that is necessary for human consumption? Yeah, it can be yes. zero. No, sir, fluoride is necessary because it should be there in water, sir. Because if fluoride won't be there, sir, it would result into mottling of teeth, sir. And if fluoride is in excess, it cause in deformation of bones. So it should be within the limit, permissible limits. It What is should the be between 1 to minimum? 1. What is the minimum concentration that one water one should m have? 1 mg per liter. Okay. Can you tell me what is BOD? Yes, it is the amount of oxygen that is required for decomposition of biodegradable organics. Biodegradable organics. Yes. Okay. So then what is COD? It is more than BOD, and it is the amount of oxygen required for like degradation of both biodegradable and non-biodegradable organics. Okay. Two questions out of this I want to ask. First, you said Yes. it is more than BOD. So can Yes. you give me an example, a situation where COD is less than BOD? COD of water is wastewater is less than BOD. And the second question is, if I dissolve glucose in water, Yes. what will be the BOD of the water and what will be the COD of the water? Okay, sir. For this, like when we dissolve glucose in water, sir, since it is only organic, sir, here BOD will be equal to COD only, sir, because it only contains organics only, sir. There is no inorganic. So here BOD and COD both will be equal, sir. And like, Okay. sir, as you asked the first question, sir, when will COD be less than BOD? Sir, as far as I can remember, sir, COD want to be less than BOD, but it may be equal to, sir. It can be equal to BOD, sir. बट COD ज्यादा नहीं हो सकता कभी, आप ये कह रहे हो? COD ज्यादा होगा या बराबर होगा सर BOD के? COD कम नहीं हो सकता BOD सर. कभी ज्यादा नहीं हो सकता. COD सर ज्यादा या बराबर होगा, कम नहीं होगा सर BOD से. अच्छा. जी. ओके. अच्छा, ये बता सकते हो, अगर एक
हम्म, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि सीवर का जो शेप है, जो जी सर। सीवर्स हमारे पास रहते हैं, उसका जी सर। शेप क्या होगा इफ आई हैव कंबाइंड सीवरेज सिस्टम एंड इफ आई हैव सेपरेट सीवरेज सिस्टम? Sir, in case of combined sewerage system, sir, it's generally preferred to give egg-shaped sewer, sir, where d dash is equal to 0.84 d, sir. In case of separate sewer, we go for circular shape of sewer, sir. Any reason behind this? In case, because sir, egg-shaped sewer is more like, sir, efficient, sir, because in that case, what happens in summer, sir, like one sewer is provided over above the other, मतलब एक के ऊपर दूसरा sewer ऐसे हम provide करते हैं sir उसमें. And in during the like in summer, sir, the when there will be no like a storm water flow, in that case a smaller sewer will be utilized. And when sir only there is like dry weather flow, एंड व्हेन देयर विल बी लाइक सर दोनों होगा, अगर बारिश भी हो रही है और ड्राई वेदर फ्लो भी हो रहा है, तो उस केस में जो लार्जर डाया का सीवर है वो यूटिलाइज होगा. तो इस केस में हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, so इसलिए हम एक्सेप्ट सीवर के लिए जाते हैं. अभी भी वो एक टर्म मिसिंग है जो आपको बोलना चाहिए था। ठीक है, अब हम ये ठीक है कि छोटे वाले से जाएंगे और जब जी कंबाइंड फ्लो होगा तो बड़े वाले को भी यूटिलाइज करेगा, बट जी स्टिल सर. मतलब वो एक चीज मिस कर रहे हो आप कि और सर कैसे, मतलब एक थोड़ा क्या इशू है? इकोनॉमिकल होगा सर अगर हम एक्सेप्ट सीवर के लिए जाएंगे. थोड़ा सर मटेरियल कंस्ट्रक्शन ये इस कम होगा सर, थोड़ा मतलब उसमें जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल चाहिए होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा. कॉस्ट का फैक्टर मुझे नहीं लगता यहाँ पर आएगा। सर हम्म, एक और रीजन ये हो सकता है सर कि अगर सीवर फुल रन करेगा, जैसे इन केस ऑफ कंबाइंड सीवर सर, तो हम ना ऊपर से कुछ स्पेसिंग छोड़, सीवर कभी भी फुल फ्लो नहीं करता है, एल्स देयर विल बी सर एक्सप्लोजन ड्यू टू CH4 फॉर्मेशन. ये से हम सकते हैं सर, अगर दो डिफरेंट सीवर है जैसे इन कंबाइंड सीवर से, जैसे स्टॉर्म वाटर और ड्राई वेदर फ्लो अगर मिक्स हो रहा है तो उस समय डिस्चार्ज तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा. तो अगर एक सेफ्ट सीवर होगा तो हम उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, और एक्सप्लोजन का जो चांसेस होता है ड्यू टू सर्कुलर सी में एच भी तो वो सी चीज एच बैलेंस की जा सकती है सर आशीष, इफ यू आर किस प्रोवाइडिंग लार्जर सीवर। अगर आप उसका डिजाइन की कैपेसिटी के हिसाब से उसको आप डिजाइन जी, करोगे, तो फिर 500% लार्जर रिजर्व प्रोवाइड मान के। करेंगे. जी सर. हाँ ये तो फिर अनइकोनॉमिकल सर थोड़ा, सर आई नहीं, डोंट एक्चुअली. एग शेप्ड वाले का भी कुछ तो डिजाइन डिस्चार्ज आप मान के चलोगे ही, और उसके ऊपर अगर डिजाइन करोगे तो उसका कुछ साइज बनेगा ही। और यस. सर्कुलर बनाना कंपैरेटिवली आसान है। एग शेप्ड बनाने में अगर आपको लगता है कि कॉस्ट सेविंग है, तो बिकॉज ऑफ उसका वियर्ड शेप है इस करके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका ज्यादा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कॉस्ट मुझे नहीं जी लगता जी इसमें ज्यादा फैक्टर रहेगा। एक टर्म आप शायद मिस कर रहे हैं, वो मैं चलो आपको बताऊंगा फीडबैक में कि वो जी. एग्जैक्ट वो ओके. क्या है। ओके सर. ओके अच्छा, सर. आपने कभी एक टर्म सुना है पूरे एनवायरनमेंट, ब्लू बेबी सिंड्रोम? जी. जी सर. कौन ये से व्हेन आयन की वजह से होता है ये? कौन सा, सर मतलब क्या जब किस वजह से? नाइट्रेट, हाँ जी, जब नाइट्रेट mg पर लीटर ज्यादा होता है सर, उसको मेथेमेलोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं. आई डेंट गेट दैट, कितना मेथेमोग्लोबिनेमिया. कितना कॉन्सेंट्रेशन बताया आपने जिससे ज्यादा हो सकता है? 45 mg पर लीटर सर, 45 mg पर लीटर से ज्यादा का नाइट्रेट का कंसंट्रेशन होता है फिर ब्लू बेबी नाइट्रेट सिंड्रोम. का वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या नाइट्रेट आयन का? सर आई सॉरी सर, आई डेंट गेट. केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट सर आयन? NO3 माइनस सर. NO3 नेगेटिव, ओके। जी सर. नाइट्रोजन फैमिली में एक और आयन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वाटर में, वो टॉक्सिक होता है। वो कौन जी सा नाइट आयन है? नाइट्राइट सर, NO2 माइनस. ओके, ठीक है। जी अ, अच्छा ये बताओ कि जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस होगी, जब हम जी सर. क्लोरीन को डालेंगे पानी के अंदर डिसइंफेक्शन के लिए, उस टाइम जी सर. पीएच हमें कितनी रखनी चाहिए? एसिडिक पीएच रखनी चाहिए या बेसिक पीएच रखनी चाहिए? सर हम एसिडिक पीएच ही रखते हैं, क्योंकि सर अगर डिसइंफेक्शन करते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो HOCl होता है सर, एंड दैट वर्क्स इफेक्टिवली इन पीएच अराउंड 5.5 सर. तो इसलिए स्लाइटली एसिडिक ही रखते हैं सर. वर्क्स इफेक्टिवली 5.5 में, या कुछ और है उसका एसिडिक उसके साथ रिलेशनशिप? सर HOCl इज सर 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन OCl माइनस सर. तो इसलिए सर HOCl हमारे पानी में रहे सर, तो एंड दैट वर्क्स सर, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू सर रिवर्स जो रिएक्शन होता है OCl माइनस कन्वर्ट्स बैक टू रिवर्सिबल रिएक्शन जो है सर, वो HOCl एट पीएच अराउंड 5.5 से
it OCl minus turns into HOCl. तो हम सर this pH इसलिए जी this is the right answer कि OCl and HOCl there is an equilibrium between that and हाँ अगर वो करेक्ट बेसिक हो यस जाएगा तो OCl की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो आप चीज बोलिए, that's जी why सर जी ओके सर okay ठीक है हाँ फिर UD। फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा सर। अच्छा सेकेंडरी और प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बताइए एयर पॉल्यूटेंट क्या चीज है? सर एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सर एयर पोल्यूटेंट्स जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी दो एयर पोल्यूटेंट्स है सर, मतलब हुज कंसंट्रेशन इफ मोर देन अ परमिसिबल लिमिट और लाइक, तो उससे सर सारा बीमारी जैसे मतलब इवन ऑक्यूपेशनल डिजीज सिलिकोसिस वगैरह ये सब हो सकता है सर इफ ये आप किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट का? नहीं सर एयर पोल्यूटेंट का मतलब अगर जैसे ओके PM 2.5 ओके हो गया या एयर फिर पॉल्यूटेंट हाँ एनी मटेरियल विच इज इन हार्मफुल कॉन्सेंट्रेशन, ये कह रहे हो आप, या जिससे विच हाँ इज इन हायर हाँ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हाँ जी तो उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी में हाउ डू वी क्लासिफाई? सर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर लाइक कॉक्स सॉक्स नॉक्स सर, ये सब जो है ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं और ये तो प्राइमरी एयर एग्जाम्पल्स पोल्यूटेंट्स हो गए ना, रीजन जी क्या है कि क्यों इनको प्राइमरी कह रहे हो और क्यों सेकेंडरी की क्या एग्जाम्पल्स है वैसे? सर सेकेंडरी में आपका हो गया सर फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, पैन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ओजोन हो गया। हाँ तो ये इनको क्यों सेकेंडरी कह रहे हैं? कोई सर ऐसे ये ही बिकॉज वो ये बना दिया है या जी कोई रीजन है? नहीं ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के मिलने से ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट अगर वाटर और प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स मिलकर भी कई दफा से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनाते हैं और दो सेकेंडरी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिलकर भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं सर ओके जी। तो जो पैन आपने एग्जांपल दिया, वो पैन किसके पॉल्यूटेंट्स के मिलने से बनेगा? सर peroxyl acetate nitrate sir pan I don't know sir exactly sorry Hmm, combination I don't remember as for now sir pan photochemical smog I can recall that but नाइट्रोजन है pan अगर उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बन जाना हाँ सर चाहिए तो नॉक्स इन हो सकता प्रेजेंस है ऑफ सर सनलाइट। हाँ, नॉक्स इज द यस सर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके सर अच्छा, तो नॉक्स प्लस सनलाइट हाँ नॉक्स प्लस सनलाइट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर अच्छा ठीक है, मेरे पास एक मान लीजिए पानी का सैंपल है, उसके अंदर मैं पोटाशियम नाइट्रेट डिसॉल्व कर देता हूँ कुछ यस अमाउंट, तो क्या पानी हार्ड हो जाएगा? कैन द एडिशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर मेक इट हार्ड? सर पोटेशियम नाइट्रेट को हम ऐसे तो सर डिसइंफेक्शन के लिए यूज होते हैं, जो गांव में जो वेल्स वगैरह होता है उसमें सर हम पोटेशियम नाइट्रेट KMnO4 पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट यूज परमैंगनेट सॉरी सॉरी और सॉरी पोटेशियम सॉरी सर सॉरी सर नाइट्रेट में सॉरी आप कंफ्यूज कर रहे हाँ हो। सॉरी सर सॉरी हाँ पोटेशियम नाइट्रेट ओके सर नो सर पोटेशियम नाइट्रेट won't yield hardness sir because hardness is caused due to multivalent cation sir, here potassium is since only univalent sir K plus, so it won't result in hardness of water sir. मोनोवेलेंट होता है, सब हाँ यूनिवेलेंट monovalent नहीं। sir. I said univalent sorry हाँ यूनिवेलेंट नहीं है कुछ सब वैसे, जहाँ हाँ तक है monovalent yeah monovalent is the मोनोवेलेंट आप term sir. बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ ओके सर monovalent अच्छा, monovalent sir. एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स रहता है, एयर Yes क्वालिटी sir. इंडेक्स बोलते हैं उसको, जो कि Yes बताता है कि क्या एयर क्वालिटी है। कितनी वैल्यूज की होनी चाहिए तब हम कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी जो है दैट इज सेटिस्फैक्टरी और दैट इज गुड? मतलब कि इट इज गुड फॉर ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस कैन टेक इट दैट एयर, दे कैन इनहेल दैट एयर एंड इट विल नॉट हैव एनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। कोई आपको sir आइडिया है इसमें? there is a limit for AQI sir but I don't remember the limit exactly but yeah sir I can guess like if you say it's if it's within 100 you can say that AQI is good, so if AQI is more than like if it increases we say that it's not the air is not fit for inhaling. Okay, The limit I will have to brush up on sir ठीक है। sorry. Hmm, As far as I can guess sir 100 to 200 it's okay sir we can inhale. चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं और कब होता है ये? ओके सर सर होता क्या है कि जैसे हाइट बढ़ता है सर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, लेकिन इन केस ऑफ इन्वर्जन क्या होता है कि जो जैसे हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होता है
टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इसी फिनोमेना को हम इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन सर दो तरह की होती है, एक सब्सिडेंस इन्वर्जन कहते हैं और एक रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं सर। ओके, तो बता एक सकते हैं कोई जी एग्जांपल कब होता है इन्वर्जन, मतलब रात को होगा, दिन में होगा, सर्दियों में होगा, सर, गर्मियों में होगा, कब होगा? विंटर्स में होता है मोस्टली, और एक एंटी साइक्लोन के टाइम में ये होता है, इन्वर्जन देखने को मिलता है सर। विंटर्स में कब जैसे होगा, दोपहर में या हाँ रात सर, में या दिन में? सर दोपहर में सर। अ, चलो कोई नहीं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। सीवेज सिकनेस क्या चीज होती है? हाँ सर, जैसे हम किसी एक जगह पे सर वहाँ पे डाल रहे होते हैं, मतलब सीवेज जाके डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो एक समय हो आशीष, जाता है आपकी सर। आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? हेलो हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? या ऑडिबल हेलो। ना हो, क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हो आप हाँ सीवेज सिकनेस का? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम किसी जगह पे सर हम इसको डालते हैं सर, डंप करते हैं, हम्म, मतलब लैंड पे सर, लैंड डिस्पोजल करते हैं। तो एक समय के बाद क्या होता है कि वो लैंड का जो कैपेसिटी होता है सर, और लेने का मतलब जो क्षमता होता है, और मतलब वे वो कैरी करने का वो कम हो जाता है, उसी प्रोसेस को सीवेजनेस कहते हैं सर। मतलब कि ठीक है, आपने जो स्टार्टिंग का बताया ओके, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रोसेस है, वो आप आधा जो है वो बीच में खा गए हैं। आ, सर परकुलेटिंग कैपेसिटी उसका अफेक्ट होता है सर, जो क्यू स्टार इज इक्वल टू 204 बाई अंडर रूट टी होता है। वो सर, वो जो परकुलेशन रेट होता है सर, वो कम हो जाता है सर वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे अपना सीवेज का पानी जो है वो किसी रिवर में डिस्चार्ज करना है, तो कौन यस से दो पैरामीटर्स जो है वो मुझे विद इन लिमिट्स रखने पड़ेंगे, और वो लिमिट्स क्या है? सर, ऐसे तो हमें बीओडी सीओडी दोनों देखना पड़ेगा सर। और डाइल्यूशन फैक्टर सबसे बड़ी बात है सर। अगर डाइल्यूशन फैक्टर अगर सर ज्यादा है सर, तो 500 से ज्यादा है सर, तो हमें ऐसे ही डायरेक्टली वी कैन डिस्चार्ज सर। नहीं, और 500 से ज्यादा जो आप डाइल्यूशन फैक्टर कह रहे हो वो रिवर्स में रेयरली पॉसिबल होता है, दैट इज पॉसिबल इन सी और ओशन। रिवर्स में इतना ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होता कि डाइल्यूशन फैक्टर 500 मिल सके पर नॉर्मल लेक सिटी का, जैसे अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मैं बात करूं, अगर एक घर के सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज की बात है तब तो बात ठीक है, बट सपोज आपके पास एक सिटी है, जैसे दिल्ली है या कानपुर है, उसका मुझे सीवेज डिस्चार्ज करना है गंगा जी के अंदर, तो मुझे क्या जी पैरामीटर जो है वो देखने पड़ेंगे और सर, कितना उसमें वैल्यू? सर पहले तो हम कोशिश की भर में कम से कम करें सर। अगर उसके बाद भी अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, जैसे एसटीपी से फ्लुएंट हो गया, अगर उसको हम डिस्चार्ज भी करना चाहते हैं, तो हम ये मेंटेन करेंगे कि उसका डीओ सर ग्रेटर देन 4 mg/लीटर हो, ताकि सर एक्वेटिक लाइफ उसमें सरवाइव कर सके। एक्वेटिक लाइफ डीओ हम लोग अफेक्ट मेजर नहीं। नहीं करते हैं ना, डीओ हम लोग मेजर नहीं करते हैं। अगर आप हाँ अगर सर, आप ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं, डीओ इज नॉट समथिंग दैट वी कंट्रोल एंड मेजर। करेक्ट करेक्ट सर, नो लाइक तो डायरेक्टली सर सीवेज भी हम तो रिवर में डिस्चार्ज करते हैं सर, नहीं, इफ्लुएंट सीवेज, एसटीपी का। ओके, आई एम आस्किंग जी दैट डायरेक्टली जो सीवेज प्रोड्यूस हुआ थ्रू सीवर्स जो लेकर आ रहे हैं, उसको एसटीपी पे हम लोग पहले डालते हैं। जी सर। डालते हैं सो एज टू रिड्यूस समथिंग, ताकि उसके कुछ हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स इतने आ जाएं, उसके बाद फिर हम उसको सेफली डिस्पोज कर सके। एंड में तो वो हाँ सीवेज हमें डिस्पोज ही करना है ना, देर इज जी नो अदर ऑप्शन विद अस। हम उसमें सीवेज का करेंगे क्या, पूरे सिटी के सीवेज का करेंगे क्या? फाइनली तो उसको रिवर में डिस्पोज ही करना है। इतने सीवेज को तो हम यस सर, फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या और इतना ज्यादा तो नहीं करेक्ट, इस्तेमाल कर यस। सकते, तो तो फाइनली सर रिवर जो में ही जाना है। पैरामीटर्स हम देखते हैं। बट अगर हम उसको थोड़ा सा हाँ सर। वो कर दे, ट्रीट कर दे, तो इट विल बी बेटर फॉर द रिवर। वो इजीली उसको प्योरीफाई कर पाएगी रिवर। तो इसके ना कुछ वो है, लिमिट्स यस हैं, अगर आपको वो पता सर, है तो यस बता दो। स्टैंडर्ड सर, ब्यूटी से देखते हैं सर ये, as I can recall sir, these three limit parameters और ये आपकी आवाज see कट रही है, सर। क्या कह रहे हो, दोबारा से रिपीट कर दो एक बारी। हेलो सर, आ रही आवाज आ रही है? हाँ, कट रही है बीच हेलो, में ना। हेलो हेलो, हाँ कट रही अभी है आ बीच रही में, सर? हेलो हाँ, बोलो बोलो। तीन स्टैंडर्ड सर, बीओडी और सीओडी, तीन चीजें देखते हैं सर मोस्टली तो। बीओडी सीओडी सीओडी और? का वैल्यू सर 250 mg पर। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज कट रही है हेलो आशीष बहुत ज्यादा, पहले तो नेटवर्क ठीक था। हेलो हेलो सर, सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। हेलो, हाँ हेलो, आ रही है सर अभी। अब आ रही है हाँ आवाज? जी जी सर, हेलो।
ठीक है, तो बता दो क्या क्या पैरामीटर्स बता रहे हो, फिर हम इसको रैप अप करें। सर एक बीओडी हो गया सर। हाँ, कितनी वैल्यू होनी चाहिए आपके हिसाब से बीओडी की डिस्चार्ज सर करते? 30 mg/L से 30 mg/L से। ओके, और सीओडी 250 mg/L से कम सर। और सस्पेंडेड सॉलिड्स 1500 mg/L से। और ऑयल एंड ग्रीस 10 mg/L। ओके। हेलो सर, अच्छा, आवाज आ हाँ। रही है सर आप? हाँ, मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी जी, आ रही है सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं फीडबैक देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद किसी और का सेशन है। अम, जी। मेरे पास ना एक वेस्ट वाटर का मुझे बीओडी निकालना है, बीओडी 5 आई नीड टू डिटरमिन। ओके तो सर। मैंने उस वेस्ट वाटर को ओके सर। डिस्टिल्ड वाटर के साथ जो है मिक्स किया, और जो उसका जो कंबाइंड मेरे पास मिक्सचर बना, उसका मैंने डीओ जब चेक किया, दैट केम आउट टू बी 9 mg/L। ओके सर। ठीक है। और मैंने जो यस है सर। डाइल्यूशन रेशो 10 रखी है, कि 10 मिलीलीटर सैंपल लिया और 90 मिलीलीटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर लिया, तो 10 मेरा ओके सर, डाइल्यूशन ट्यूशन रेशो आ फैक्टर गया। 10 हो गया। हाँ, 10 का मैंने इसमें डाइल्यूशन फैक्टर लिया है इस केस में। और जी। इनिशियल डीओ जो है वो मेरा 9 mg/L है। फाइनली जब यस। मैं चेक करता हूँ 5 दिन के बाद, जब मैं सैंपल को इंक्यूबेटर से बाहर निकालता हूँ, उसका डीओ में मेजर करता हूँ, केम आउट टू बी 0 mg/L। 0। हाँ। ओके। तो तुमको बताना है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ माय वेस्ट वाटर सैंपल। Okay. Sir, we'll have to discard these tests, sir. Like if final BOD is coming out to be 0 mg/L. और कोई सर, रीजन? uh, हाँ, because we cannot है फॉर्मूला सर, DOI minus DOF वैल्यू नहीं लगा सर। 0 होने का मतलब है कि सर उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। 0 mg/L हो रहा है तो उसको हम नहीं, डिस्कार्ड को भी। ठीक है, ये मैं आपकी बात हाँ। समझ गया कि 0 मिलीग्राम वैल्यू है, तो आप वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ क्यों। ये तो चलो बच्चे बोल ही देते हैं, बट रीजन आपको पता है क्या इसके पीछे? सर क्योंकि 0 कब हुआ होगा ये पता नहीं है ना अपने को। फाइनल 5 दिन से पहले भी हो सकता है ना, एग्जैक्टली 5वां दिन ही 0 हुआ ये पता नहीं है। तो कब 0 हुआ होगा वो पता नहीं है, तो हम टेस्ट को करेक्टली प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो ओके, अगर दैट अपने को पता है। हाँ। यस सर। हाँ, मतलब वो सही आंसर है, ठीक। ओके। ओके सर। ठीक है आशीष, फीडबैक जी दे देता हूँ मैं, सेशन को जी रैप करते हैं। आशीष, मुझे जहाँ तक लगा है जी। आपका नॉलेज अच्छा है, आपने मास्टर्स किया हुआ है इन्वायरमेंट में। हाँ यस सर, IIT कानपुर से मैंने एमटेक में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है सर। अच्छा, तो राइट नाउ आपने। सर आई एम वर्किंग इन LNT सर, इन चेन्नई सर। ओके, एलएनटी चेन्नई, ओके। यस सर। तो सो थोड़ा सा व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल प्रोजेक्ट सर। आर यू वर्किंग ऑन? सर राइट नाउ लाइक वी हैव ज्वाइंड एज अ PGET ओनली सर। तो अभी कुछ वैसा प्रोजेक्ट सर अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं किए हैं। अभी तो कोड बुक वगैरह ही पढ़ने बोलते हैं। और थोड़ा सर कॉर्पोरेट में आने के बाद सर एक मोर देन 1 मंथ हुआ सर, तो थोड़ा सा टेक्निकल सर अभी। जब हम पढ़ा करते थे उस टाइम पे उस लेवल का, तो सर अभी थोड़ा टाइम लगेगा ब्रशअप करने में। नहीं, तो सर। नहीं, बेसिक जी। क्या है, सिंस यू आर अपेयरिंग फॉर टीचिंग जॉब, तो इसमें यस। क्या रहता है कि इंटरव्यूअर जो है वो, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल भी पूछेगा, बट मोस्ट ऑफ जी। उसके सवाल जो रहेंगे वो बेसिक रहेंगे। ओके सर, बेसिक्स बट हाँ। द थिंग इज कि वो कॉन्सेप्ट चाहता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेसिक सवाल पर, ऐसे आपके आने चाहिए बेसिक सवाल की, मतलब पूरा आपको उसके बारे में पता है। ओके सर। फिर वो उसमें क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर एज सच आपको सपोज डिप्लोमा वाले बच्चों को ही पढ़ाना है, तो आपको बहुत हाँ ज्यादा कुछ उनको वैसा नहीं पढ़ाना है कि बहुत कुछ मास्टर्स लेवल की चीजें नहीं बतानी है। आपको हाँ। चीजें नॉर्मल ही बतानी है, इवन बीटेक लेवल से भी नीचे डिप्लोमा वालों का रहता है। जी जी। बट थिंग इज कि आप जो एक्सप्लेन करो वो उनके दिमाग में आना, घुस जाना चाहिए पहली ही जी दफा। सर। तो जी वो सर। थोड़ा सा मुझे है कि कॉन्सेप्ट, मैंने आपसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा आज, मैंने आपसे कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो जी सर। क्वेश्चन बेसिक्स थे, बट ये था कि मतलब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे सारे। ये यस है सर। तो क्यों है, शेप ऐसी है यस। तो क्यों है, अगर हम लोग यस। डिस्कार्ड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। डिस्कार्ड वाला तो ओके बहुत सर। ईजी है, बहुत सारे बच्चे जीरो सुन के डिस्कार्ड बोल देते हैं, बट व्हाट इज द रीजन, क्यों यस वैसा सर। है। तो मोस्टली मैंने ऐसे सर क्वेश्चन आज इंक्लूड किए थे जो मुझे लगता है कि बेसिक थे, बट कुछ रीजनिंग था उनका। ठीक है। हाँ, ये भी और सर भुला भुला सा लग रहा था, ये क्यों डिस्कार्ड
हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इसको एक बार आप, अचानक से। हाँ हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, और सिंस आपने मास्टर्स एनवायरनमेंट में किया हुआ है तो एनवायरनमेंट में उनका फोकस रहेगा, मतलब वो पूछ जी सकते हैं सर। क्वेश्चन, ओके। चांसेस हैं कि क्वेश्चन एनवायरनमेंट हाँ के सर। भी आएंगे। ठीक सर है। लेकिन मैंने, सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर आपको। मैंने मास्टर्स किया सर 2020 में सर, और एक फॉर्म आया था 2018 में, तो मैंने फॉर्म मास्टर्स नहीं किया सर। नहीं ठीक है, मे बी, हेलो। पर वो आपको पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ तो सर मेरे को नहीं मास्टर का एडवांटेज भी नहीं मिलेगा ना फिर तो, मैं ये नहीं, पूछ रहा था आपसे। एडवांटेज तो आपको नहीं मिलेगा, आपको तो ग्रेजुएट बेसिस पे ही आपका कंसिडर होगा, मे बी फिर इन प्रमोशन आपको एडवांटेज मिल सकता है लेटर ऑन, कोई ओके मतलब सर। बाद में, ओके सर। क्योंकि मास्टर्स टीचर के लिए अच्छा करेक्ट। रहता है। तो रिसर्च और प्रमोशन में भी जी। लेटर ऑन आपको लगेगा, लेकिन फिलहाल तो आपका ग्रेजुएशन बेसिस पर ही होगा। और कहाँ से किया ओके आपने सर। ग्रेजुएशन, बीटेक कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन तो मैं बीटेक मैंने सर बेंगलोर से किया था, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सर। आप हो कहाँ से बैंक ओरिजिनल? सर मैं पटना से हूँ सर। तो बैंगलोर इतनी दूर, फिर आप गए थे, कोई आपका हाँ नोन है सर। वहाँ पे? नोन नहीं है सर, मैंने कॉमेड के एग्जाम लिखा था सर, तो फिर वहाँ कॉलेज मिल गया सर रमैया, तो मैं ले लिया वहाँ पे सर। ओके। सर उसके बाद फिर थोड़ा गेट का प्रिपरेशन किया, फिर एम वहाँ चला गया सर। अच्छा, नहीं आपका कॉन्सेप्ट मुझे ठीक लगे, नॉलेज आपका अच्छा है। एक दो चीजें थी, एक दो क्वेश्चंस जो मुझे लगता है थोड़े से जहाँ पर वो था, मैं बता देता हूँ इसका। एक हम लोगों ने शायद, हाँ जी हमको जी वो हार्डनेस वाला आपको पता नहीं लगा था, 75, दैट हाँ 75 इज फॉर हाँ बॉयलर फीड वाटर। सर, हार्डनेस दैट 75 लीटर, 75 75 टू ml, 150। no 75 to 150, no 50 ppm, I know that is for boiler water. ओके। If you want to use the water ओके सर for बॉयलर। हाँ industrial purpose, in case of boiler हाँ you need करेक्ट। very soft water. So ओके सर। you ओके need स्क्रीनिंग नहीं हो रहा virtually soft water, मतलब जिसका है। ओके almost सर। zero हो, तुम्हें वैसा चाहिए। But since permissible is ओके। about 50, 50 से कम जो है वो acceptable है most of ओके the सर। cases। ठीक है। और ओके सर। जो ड्रिंकिंग के लिए है वो 200 ही है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन द कोड, बिकॉज वो कोड ड्रिंकिंग वाटर के स्पेसिफिकेशन का ही है। ओके ओके सर। ओके अगर ओके किसी ओके। बुक में 75 टू 150 लिखा है तो मे बी दैट इज अबाउट वेरी सॉफ्ट वाटर, अगर उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा तो ओके मैं पता नहीं, बट ओके सर। बॉयलर फीड सर वाटर का एक somewhere 50 I ml। read sir for, okay sir, somewhere I read sir it was written like for public water supplies we generally prefer hardness in the range of 75 to 115 mg per liter. But yeah sir, in the code नहीं, also it's अगर written कोड में अगर permissibly। 200 लिखा हुआ है तो हम तो कोड वाला ही लेंगे, हमें उससे जी। मतलब हाँ ऑब्वियसली अगर ओके ओके 75 टू फाइन। 150 है तो इट इज डिजायरेबल ओनली, इट इज लेस देन 200 ओनली। अच्छी बात है अगर 75 टू 150 है, बट अप टू 200 हम चला परमिट कर रहे हैं, और इवन इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑल्टरनेट सोर्स हम 600 तक भी परमिट कर रहे हैं। तो जी 150 जी मुझे जी नहीं जी लगता कि ओके आना सर। चाहिए, बट ये कि हाँ डिजायरेबल तुम कह सकते हो, दिस कैन बी द डिजायरेबल लिमिट। 200 इज द ओके परमिसिबल लिमिट और 600 इज द ओके सर। परमिसिबल ओके लिमिट, दिस कैन बी डिजायरेबल लिमिट, कि अगर ये होगा तो विन विन ओके सर। सिचुएशन। ओके ओके। और ओके सर। इसके अलावा, डिजायरेबल। ओके हाँ इट डिजायरेबल, इट कैन, वी कैन से डिजायरेबल इफ यू वांट टू से। ओके और 50 ओके mm ठीक। ppm पूछेंगे तो दैट इज फॉर बॉयलर फीड वाटर, दैट यू कैन। जी जी इसके ठीक है सर। अलावा एक हमने एग शेप्ड और सर्कुलर वाला किया था, दैट आई आस्क्ड यू दैट व्हाट इज द डिजायर्ड शेप फॉर कंबाइंड सीवर, हाँ प्रेफर्ड शेप फॉर यस कंबाइंड सर। सीवर। तो एग करेक्ट शेप्ड करेक्ट वाले सर। का क्या रहता है कि व्हेन द फ्लो विल बी लेस इन केस ऑफ योर ड्राई वेदर फ्लो, तो सर्कुलर में जब यस तुम सर। उसमें से पास करवाओगे, सर्कुलर इज द आइडियल शेप, that's why we use यस सर। यस circular for separate one. So circular is the यस ideal सर। shape. You always design for circular only. But circular हाँ में आप यस dry weather flows up पास करवाओगे तो it will be यस जो उसकी जो height होगी यस water की, वो बहुत कम होगी. That will be even बहुत less कम than होगी। 0.5 times of diameter. मतलब वो यस सर। आधे से यस भी कम फ्लो कर रहा है. तो when जब वो या आधे से भी करेक्ट। कम फ्लो कर रहा है तो उसकी ना हमें हाँ हाइड्रोलिक जो बेनिफिट्स मिलते हैं सर्कुलर सेक्शन के, सर्कुलर सेक्शन के यस बेनिफिट्स क्या रहते हैं कि इट इज वेरी इकोनॉमिकल, मोस्ट यस सर। इकोनॉमिकल सेक्शन में आता है, पैरामीटर जो है वो मिनिमम हो जाता है फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन, तो वो हमें हाँ उसका पूरा एडवांटेज नहीं मिलता, एंड सेल्फ ओके सर। क्लिनजिंग वेलोसिटी डज नॉट डेवलप। ओके सर। तो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी वो वर्ड था जो की वर्ड था, मैं आपको बोल रहा था कि आप ओके मिस सर। कर रहे हो। सेल्फ सेल्फ क्लिनजिंग क्लींस। वेलोसिटी इज हाँ हमारा या यस सर, हाँ जो वो फॉर्मूला होता है डिजाइन ना ए बीटा बाई ए माइनस 1 जेडी। ठीक है, वो हाँ फॉर्मूला भी होता है उसका। तो यस सेल्फ सर। क्लिनजिंग वेलोसिटी वर्ड आपको बोलना था, क्योंकि सेल्फ ओके सर। ओके क्लिनजिंग ओके वेलोसिटी अगर डेवलप नहीं हुई
तो हमारा सीवर जो हाँ है वो ठीक डिजाइन नहीं हुआ। तो जब सर्कुलर में हम ओके सर। करेंगे और डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सेल्फ क्लिनजिंग नहीं होगी। लेकिन एग शेप्ड वाले में हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जब वो ड्राई वेदर फ्लो होगा वो नीचे वाले उससे फ्लो करेगा, छोटे वाले सर्कुलर से फ्लो करेगा, और उसमें वो अबव हाफ फ्लो करेगा छोटे वाले में। ओके सर। तो ओके हमें सर। क्लिनजिंग वेलोसिटी मिल जाएगी और वो जो इकोनॉमिकल ओके सेक्शन ओके। है वो स्टिल वैलिड होगा। तो एक क्लिनजिंग वेलोसिटी वर्ड करेक्ट सर, आपने आई जो बोला। विल। हाँ, एक बार ओके आप सर, आई विल। दोबारा से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली। फ्रेशली आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके जी अलावा जी बिल्कुल। डिसइंफेक्शन प्रोसेस वाला भी हम लोगों ने बात किया था कि एसिडिक रेंज में हाँ द प्रोडक्शन ऑफ हाँ। HOCl विल बी मोर, और यस बेसिक सर। में OCl में ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, और ओसीएल माइनस OCl, ज्यादा होगा, यस सर। हाँ, जी OCl की जी। डिसइंफेक्शन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसके स्ट्रॉन्ग अलावा नहीं है जो सर, करेक्ट। एटमोस्फेरिक इन्वर्जन वाली हम लोगों ने बात की थी, वो सर्दियों में देखने में मिलता है, जी। और कब देखने में मिलता है? विंटर मॉर्निंग। विंटर मॉर्निंग, ओके सर। विंटर मॉर्निंग्स में देखने को मिलता है, जब क्या होगा कि हमारा जो अर्थ है वो स्टिल अभी ठंडा होगा, ठंड की वजह से। हाँ लेकिन ओके सर। धूप निकल चुकी है ऊपर के एटमोस्फेयर में, तो ऊपर की जो लेयर्स हैं दैट विल बी कंपैरेटिवली हॉटर। ओके सर। इसी करके जो करेक्ट धुंध सर। वगैरह ज्यादा दिखती है वो सर्दियों में दिखती है, सुबह सुबह वो भी। जी। हाँ। बिकॉज वो जो लंदन स्मॉग हुआ था सर। हाँ, क्योंकि वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो वाटर वेपर्स हैं दे कांट एस्केप, और वो ऊपर ओके नहीं जा सर। पाते। वो हाँ इन्वर्जन की वजह से हमें सवेरे इसलिए दिखती है। विंटर मॉर्निंग्स इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन गिव इन केस ऑफ ओके सर, विंटर। विंटर मॉर्निंग रेडिएशन इन्वर्जन, ओके सर। हाँ, और ये ये आप बोल सकते पोल्यूटेंट हैं। वाला। पॉल्यूटेंट वाला मैंने आपको बताया था, वो एनी सब्सटेंस विच इज मोर देन परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन, जो उसकी परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन जितनी है उससे ज्यादा में जब वो होगा दैट इज पॉल्यूटेड। और फिर उसके बाद प्राइमरी ओके। जो हो गया कि जो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकेंडरी विद कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट एक और हाँ। चीज हम लोगों ने बात, AQI के बारे में हमने बात किया था। तो इसकी जो लिमिट है दैट इज अप टू 50 इज गुड, व्हाट एंड सर, अप टू 50 किसका किसका बोल रहे AQI बताया था ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हैं? अच्छा। अप हाँ टू करेक्ट करेक्ट, एक्यूआई लेस जीरो देन टू 50। हाँ, 0 to 50 और लेस देन 50 इज गुड। हाँ इट विल बी गुड क्वालिटी एयर, एंड ओके सर। 50 to 100 इज सेटिस्फैक्ट्री। ओके सर। बियॉन्ड 100 हाँ इज 50 to 100। समवट, हाँ, बियॉन्ड 100 जो है वो हाँ देन इट इज प्रॉब्लमैटिक। तो 100 हाँ, इज द इट इज सेफ ऑफ लिमिट। मैटर ऑफ 100 ओके सर, या आई 100 इज रिमेंबर द सेफ समवhat लिमिट, मतलब या। कुछ। तो आपने यस जो गैस किया था तो लकी गैस मुझे लगा था 100, देन आफ्टर दैट यू सेड 100 to 200। यस। So 100 to 200 is हाँ not that good, but up to 100 is good. Up to 100 we ओके can allow. Okay, ओके up सर। to 100 is अप टू good. 100। Up to यस 100 is सर। good. इसके हाँ, अलावा इन देन दिल्ली इट गोज अप टू 300 आल्सो एट टाइम्स। यस। हाँ, 400-500 भी जा सकती है। इन चार्ज। इवन या रिसेंटली दिल्ली में इट वाज 400 समथिंग। तो दैट इज बैड, ओके। दैट इज वो बहुत ज्यादा फिर खराब उसमें चली जाती है, एंड वो खराब उसके, जी। हाँ। तो अप टू 100 इट इज सेटिस्फैक्ट्री। 100 तक ओके आपकी सर। इवन सिटीज लाइक चंडीगढ़ अगर आप देखेंगे तो AQI यहाँ का जी जी। 75, 78, 80 रहता है नॉर्मली, विच इज एक्सेप्टेबल। ओके बट ओके सर। अगर ओके। 100 से बियॉन्ड जाता है तो दैट इज नॉट गुड। और अपने पटना का सर कितना रहता है सर? आप पटना का आइडिया तो है? फिर आपको देखना पड़ेगा, मुझे नहीं आइडिया पटना का, बिकॉज आई हैव ओके नेवर बीन टू ओके पटना। ओके। बट आई थिंक मोस्ट 200-300 के रेंज में होना चाहिए, मे बी 200 तक ही होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आई डोंट नो कि कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड है, डिपेंड करता है कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड है ओके। ना, और कितना ऑटोमोबाइल वगैरह का वहाँ, और हाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जी कितना ज्यादा है। जी। तो आई मैं थिंक देख लूँ। 200-300 होना चाहिए, बाकी एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। जी बिकॉज आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन हो बिल्कुल। सकता है वो पटना बेस्ड हो सकता है, बिकॉज BPSC इज हाँ बिहार रीजनल, तो वो रीजन स्पेसिफिक हाँ। आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे पटना का इतना पता नहीं है, तो जी आप एक बार ओके देख लीजिएगा। ओके। ओके सर। इसके ओके अलावा ओके श्योर सर। इसके अलावा मैंने आपसे एक और क्वेश्चन, फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 1 to 1.5 है, ठीक है, वो हम लोगों ने बात कर ली थी। पोटाशियम नाइट्रेट जो है दैट कैन नॉट कॉज हार्डनेस, बिकॉज वो हाँ मोनोवेलेंट मोनोवेलेंट है टाइन है। हाँ और पोटाशियम परमैंगनेट और हाँ। नाइट्रेट में कंफ्यूज नहीं होना है, तो प्लीज एक बार आप देख लीजिए, बिकॉज हाँ वो करेक्ट थोड़ा सा, हाँ या मेरे को पोटाशियम जी परमैंगनेट बहुत अलग चीज है, ठीक है। और वो जी BOD जी, वाला वो भी हम लोगों ने, डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं। हाँ, डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, बिकॉज वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग रिलीज एजेंट, करता है। करेक्ट। हाँ, तो दैट्स व्हाई इट इज। इसके जी अलावा जो है हम लोगों ने BOD वाला किया ओके था, वो सर। आपने बता दिया, तो उसका भी वही रीजन है कि हमें ये नहीं पता है कि का वो कब जो है वो जीरो हो गया है। तो अगर जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ दैट विल नॉट बी BOD 5 वैल्यू, दैट कैन बी BOD 1 वैल्यू ऑल्सो, या BOD 2 वैल्यू ऑल्सो। वो मुझे नहीं पता वो स्टैंडर्ड वैल्यू है कि नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट सर एक हम बार लोग फिर सब, से आप बोलेंगे क्या? लाइक थोड़ा सा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था सर, कैन यू प्लीज रिपीट दिस? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो BOD क्वेश्चन दैट वी डिस्कस ना, जो आपने जी आंसर जी दिया वो ठीक है, उसका बस यही जी है
कि हाँ हमें ये नहीं पता लग रहा है कि कब जीरो हो गया है। तो जब हम उस वैल्यू में हाँ अगर पुट कर रहे हैं फाइनल हाँ वैल्यू जीरो, जी और उससे जो बीओडी निकाल रहे हैं दैट विल नॉट बी हाँ बीओडी 5। जरूरी नहीं है कि बीओडी वो 5 बीओडी 5 होगा, जरूरी नहीं वो जी स्टैंडर्ड बीओडी होगा, इट कैन बी बीओडी हाँ 1 ऑल्सो, इट कैन बी ऑल्सो बीओडी या 2 करेक्ट ऑल्सो। तो हमें वो नहीं पता कि यस नंबर सर ऑफ डेज क्या है, ठीक है। तो इट करेक्ट इज बीओडी, करेक्ट इट इज गिविंग बीओडी वैल्यू, बट हमें ये नहीं पता कि ड्यूरेशन कितने के लिए निकाल रहे हैं बीओडी, बीओडी 5 है कि बीओडी 3 है कि बीओडी ओके 2 है, वो हमें नहीं पता। तो दैट्स व्हाई उसको सर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके। सर क्वेश्चन आपने और पूछा था जो बीओडी ज्यादा हो सीओडी ज्यादा बीओडी ज्यादा हो नहीं सकता है क्या नहीं, सीओडी से वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बीओडी इक्वल हो सकता है सब सीओडी बराबर से कभी, हाँ इक्वल हो सकता है, जैसे मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था, बट ग्लूकोज मोस्टली या इक्वल नहीं करेक्ट होता है। करेक्ट मोस्टली इक्वल नहीं हाँ होता है, क्योंकि सम नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट विल आल्सो बी देयर। तो कभी भी ऑलवेज उससे ज्यादा ओके नहीं सर होता। बट ओके जैसे सर मान लो सिर्फ आपने ग्लूकोज ही डिजोल्व किया है, तो उस केस में जो है ओके वो सर आपका इक्वल टू 1 हो सकता है। और सपोज आपने हाँ बेंजीन डिजोल्व किया है, तो उस केस में इक्वल टू ओके 0 है, बीओडी इज इक्वल ओके टू सर 0 है, एंड सीओडी हाँ की सीओडी विल बी वैल्यू होगी। हाँ। हाँ सर तो लेकिन करेक्ट बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, बिकॉज वो बायोडिग्रेडेबल जी कंपोनेंट के साथ कर रहा है, और वो हाँ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लस दोनों नॉन कंपोनेंट। बायोडिग्रेडेबल ओके तो सर वो कभी भी करेक्ट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। तो दैट वो यस सर वो ट्रिकी क्वेश्चन था वो। उसका ओके कोई सर भी वो नहीं है। ठीक है, जी तो ये था जी आपका, ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसके साथ मेरा जी आपको बस यही सजेशन रहेगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए एनवायरनमेंट के। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाई लेवल और क्वेश्चन आएंगे, मे बी कुछ हाई लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मोस्टली हाँ क्वेश्चंस सर जो रहेंगे वो बेसिक रहेंगे, और वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि क्यों हो रहा है कोई सर भी मैं चीज। एक चीज ये पूछना था इन्वायरमेंटल लॉज भी देखना चाहिए क्या मेरे को जैसे मैं इन्वायरमेंट से हूँ तो जैसे आईपीसीसी हो इन्वायरमेंटल गया या लॉज देखो, अगर वो बेसिकली आपका बीटेक लेवल पे आपको इवेलुएट करेंगे, तो बीटेक लेवल पे बच्चों को हाँ इन्वायरमेंटल लॉज उतने पता नहीं रहते हैं। लेकिन सिंस अगर ओके आप ये सर बात मेंशन करेंगे कि दैट यू हैव डन मास्टर्स इन इन्वायरमेंट प्लस क्या है आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट वाला ना। हाँ इन्वायरमेंट हाँ हाँ, तो अगर आप ऑब्वियसली मेंशन करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप इतने दिन क्या कर रहे थे, तो आपको मेंशन करना ही जी पड़ेगा दैट यू हैव डन मास्टर्स। तो मे ओके बी सर तब वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर ये आपके परव्यू के अंदर रहा है इन योर मास्टर्स, अगर आपने ओके सर इन्वायरमेंट लॉ से डील किया है, तो आप ओके प्लीज सर उसको एक बार रिवाइज कर जाइएगा। एक बीटेक ओके स्टूडेंट्स सर को तो उससे वो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको पता होगा ओके एनवायरमेंटल लॉज के बारे में। सर लेकिन सिंस एक आपने चीज मास्टर्स किया है, तो पूछ सकते हैं। सर एक चीज और पूछना था जैसे सॉलिड वेस्ट भी थोड़ा सा मेरा स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है तो मैं सॉलिड वेस्ट के बारे में भी कुछ मतलब चाहो कोशिश करूंगा क्या कि इंटरव्यूअर को सॉलिड वेस्ट की तरफ ले जाना है सर देखो, अगर उनका मन होगा सॉलिड वेस्ट से पूछने का, तो वो पूछ ही लेंगे, और अगर नहीं मन होगा ओके सर तो मुझे नहीं लगता। कैसे अच्छा लीड करोगे ठीक आप है सॉलिड वेस्ट की तरफ, अगर वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। सपोज आपसे वो, पहली बात तो हाँ आप ये करेक्ट मान मान करेक्ट के मत चलिए कि आप एनवायरनमेंट के टीचर के लिए जा रहे हैं, आप एक ओवरऑल टीचर के लिए जा रहे हैं कि सिर्फ एनवायरनमेंट का टीचर जी है, जी कैसा टीचर, ओवरऑल ये ना। ओके ओवरऑल सर नहीं हाँ नहीं, मुझे ये इसका नहीं पता है, ये मुझे क्लियर कर दीजिए, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का टीचर है या ओवरऑल एक सर सिविल इंजीनियरिंग टीचर है। सर ये तो मेरे को भी नहीं पता सर लाइक लेकिन कुछ एक ही सब्जेक्ट शायद पढ़ाने को देंगे सर ये आई नहीं, डोंट हैव द सब्जेक्ट आइडिया आपको एक पढ़ाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इंटरव्यू में तो वो आई थिंक आपसे सारा डोमेन नॉलेज ही आपका चेक करेंगे। क्वेश्चन आपको जो एग्जाम आया था वो किस ओके उस पे सर आया था, सारा उसमें चेक कर रहे थे या सिर्फ कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चेक किया था। नहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या कह रहे हैं। हेलो। मैथमेटिक्स और टेक्निक 80 क्वेश्चंस सर है हेलो शीश आपकी आवाज चलेगी। टेक्निकल में मैं वही पूछ रहा हूँ कि सारा सर सारे ब्रांच से आया था, सारे डोमेन से चेक किया था उन्होंने, या सिर्फ एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। हाँ हाँ आई थिंक कुछ हेलो कनेक्शन। आवाज आ रही सर हाँ, आ रही, सर बोलो आवाज आ रही है अभी बोलो बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ सारे सारे डोमेन से आया था क्वेश्चन सर हाँ, तो मुझे लगता है कि जो फिलहाल आपका इंटरव्यू भी होगा, वो भी डोमेन वाइड पूरे डोमेन से क्वेश्चन होंगे। तो आप सॉलिड वेस्ट ओके में सर से क्वेश्चन आएगा और इन्वायरमेंट में से बहुत क्वेश्चन आएंगे, ये आप मत अज्यूम करिए। हो सकता है वो आपसे नहीं, एक भी ओके क्वेश्चन सर ना पूछे। ठीक है, तो इस बात की भी ओके पॉसिबिलिटी है। ओके फाइन और हो सकता है वो आपसे ज्यादा भी ओके पूछ लें कि आपने मास्टर्स किया है। तो दोनों को लेके चलना, दोनों एंड्स को लेके चलना ओके स्पेक्ट्रम के। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं भी पूछेंगे, ओके ये भी पॉसिबिलिटी है कि 10 क्वेश्चन भी पूछ लें। तो आप आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उन्हें आप ओके सर अच्छा ओके कर सर लीजिए। अगर आपको सॉलिड वेस्ट अच्छा आता है, तो आप सॉलिड वेस्ट को अच्छा करके जाइए, आप मत छोड़िए। और अगर आपके ओके इन्वायरमेंट लॉज आपके मास्टर्स की परव्यू में थे, तो आप इन्वायरमेंट लॉज को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ऑब्वियसली बहुत डीप में तो वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो आपका ग्रेजुएशन बेस ओके पर ही सर चेक ओके करेंगे। ठीक है।
बाकी वही मैं आपको कह रहा हूँ, Okay, sir. बेसिक आप एक बार देख Sir. जाइएगा, व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज सीओडी, व्हाट आर Okay, वेरियस sir. कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्डनेस, Okay. एल्कलिनिटी, ये सारी जो चीजें हैं, इन सब पे क्वेश्चंस जो हैं बन जाते हैं। और इवन जो 1050 के जितने भी लिमिट्स हैं, मेन मेन जो लिमिट्स हैं, वो आप एक बार दोबारा देख लीजिए कि एल्कलिनिटी की परमिसिबल वैल्यू कितना है, आयन कितना Sir, होना am I चाहिए। audible, sir? हाँ। Hello. हेलो हेलो, आ रही है हाँ आवाज हाँ आप? समझ हाँ तो हाँ आ रही है सर आवाज। हाँ, मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हेलो, जी जी आ जी रही है सर। आवाज? जी जी हाँ, आ रही है सर। ठीक है, तो मैंने वो आपको बता दिया, आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। सर मेरे को ये पूछना था कि मैं जॉब के बारे में मेंशन करूंगा क्या इंटरव्यू में सर, कि मैं करंटली अभी जॉब कर रहा हूँ, ये एक चीज पूछना था। देखो, ये कोई एचआर वाले, अगर आप जब आपको मॉक इंटरव्यू होगा एचआर वाले से अगर आप ये कंफर्म करोगे तो मुझे लगता है वो बेटर आंसर दे पाएंगे। बट जहां तक ओके सर। मुझे लगता है, आप झूठ भी तो नहीं बोल सकते। करेक्ट। अगर वो आपसे स्पेसिफिकली पूछेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आप आज क्या कर रहे हो, यस। तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि मैं यस। एलएनटी में कार्यरत हूँ। ओके सर। ठीक है। और ओके सर। अगर मतलब वो नहीं सर। पूछते हैं या नहीं उस तरफ ज्यादा जाते हैं, तो आप उनको ज्यादा हिंट्स मत हाँ। दीजिएगा अगर आप छुपाना चाहते हैं। बट अगर वो आपसे पूछ लेते हैं पॉइंट ब्लैंक, तो फिर आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, आप झूठ तो नहीं बोल सकते कि मैं कुछ ओके नहीं कर सर। रहा हूँ। ठीक है। बाकी श्योर सर ज्यादा श्योर। बेटर जो इसका आंसर दे सकते हैं वो एचआर का जब आप एचआर। मॉक करेंगे तो उनसे एक यस बार सर। ये कंफर्म कर लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से ओके तो ये सर। कह रहा हूँ कि मे बी मुझे तो ऑनेस्टली आंसर करना ही पड़ेगा अगर वो मुझसे पूछेंगे ओके कि सर। और सर आई हिंदी में डोंट भी बोल सकते हैं ना इंटरव्यू में, तो हिंदी आई सिंस थिंक ये। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी अलाउड होगा जहां तक तो मुझे लगता है। ओके बाकी सर। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ, आप इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों ठीक है। बाकी जहां तक मुझे लगता है जी कि हिंदी भी अलाउड होगा बिहार में, बिकॉज बिहार का जो है ओके वो सर। हिंदी काफी ओके सर, तो अगर यूज हिंदी करते में क्वेश्चन पूछते तो हिंदी में आंसर करना चाहिए सर, इंग्लिश में पूछेंगे तो फिर इंग्लिश में बोलना चाहिए सर। हैं। आप ये देख लीजिए, अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी लैंग्वेज में, आप ऐसे करिए, आप स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन उनकी इंग्लिश में रिप्लाई कर लीजिए। उसके बाद ओके देखिए सर। कि इंटरव्यूअर का क्या वो रहता है, क्या उसे आपको ओके समझने में सर। दिक्कत आ रही है, या क्या वो कुछ हाँ। पॉइंट्स आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप उतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं। तो अगर आपको ओके ऐसा सर। लगता है एक दो क्वेश्चंस के बाद कि हाँ। या तो आप उतना बेटर वे में नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या वो सामने वाला आपको उतना बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो आप अपनी लैंग्वेज को स्विच कर लीजिए। ओके सर। और वो स्विच जो है वो ऐसा लगना ओके चाहिए सर। कि बहुत नेचुरल है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप सोच कर आए थे कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा और फिर मैं हिंदी में चले गए। वो फिर आप देख लीजिए, बीच ओके बीच सर। में थोड़ा बहुत आप इंग्लिश भी डाल सकते हैं। बट फिर आप देख ओके लीजिए, सर। अगर पैनल जो है वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप मोस्टली हाँ। हिंदी में रखिए। 10-20% इंग्लिश की कोई लाइन आप बीच में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ओके सर। स्टार्टिंग में लगता है कि पैनल जो है वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, समझ भी रहा है और आपका अच्छा हाँ। इंप्रेशन भी पड़ रहा है, तो कंटिन्यू विद इंग्लिश, क्यों आपको चेंज ओके करना सर। ओके है ना, श्योर सर वैसे श्योर। करें। चलो ओके ठीक सर। है फिर आशीष, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।